problems. No, I have just want to tell you one thing. I in between when I was not doing a job, I was working with a call center. So that was a technical process. So they told me a few things about hardware and software, but that was long back. So I don't remember those things. I have the notes still with me, but I don't remember anything. That's an additional information. I don't have any problems with it, but Okay. no. So yeah, okay. So we will start with the our web development introductions part. Okay. So I'm not showing you any kind of a brochure or syllabus right now. I just show you. Okay. Yeah. So if I'm talking about the web, okay, Rajiv. Before starting this session, I want to just ask a simple question that you are comfortable in English or Hindi. Both. You Okay. can use any Okay, and language. so Both. there will be no problem for the language, and because sometimes the student will be hesitate to ask the questions if they have the doubt in the English. Okay, so that's why I'm asking you if you are comfortable in English. So I'm okay with this. Okay, if you are not comfortable with English also, so I'm also uh, try to speak in Hindi. Okay. Ma'am, I'm comfortable with both the languages. Oh I'm comfortable with both the languages. I have one question, ma'am. yes. Am I the only person in this batch? Is this batch being held only for me? Yes, yes, yes. I have received Okay. only the one student name. Okay. So if you have Okay. any doubt, you can simply ask the question. Okay, in the end of the session. Okay. So Sure. Sure. or Ma'am, okay, because disturbing the topic. Yeah. please treat me as someone who knows nothing about IT. Just I know Microsoft Word and Google Spreadsheet. That's all I know. And to some extent, I know MS Office. That's the package which I know to some extent. That's it. Otherwise, I don't know much about IT. So please treat me as someone who's new. Okay, 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 Rajiv. That's not a problem. I'm starting this course as a very beginner from the scratch. Okay, like just the HTML part you have to know very in detail. Like I am going to start in very detail from the ABCD of the HTML. Okay, so you don't need to Okay. worry about Okay. the thing that I am not able to understand the course. Okay. Okay. ठीक है मैम. ओके ठीक है. Okay. यस सो देखो जब हम वेब डेवलपमेंट की ओके जब हम वेब डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले हमारे आर्किटेक्चर्स आते हैं फ्रंट एंड बैक एंड और दूसरा होता है आपका डेटाबेस ये जो तीन Okay. आर्किटेक्चर है ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट है ओके Okay. सो यस अब मेरा एक क्वेश्चन था कि अगर आप वेब डेवलपमेंट की तरफ जाना चाहते हैं तो अभी Yes. आपकी माइंड में कोई ऐसा है मेन स्टैक है कि मुझे फ्रंट जैसे कि अब मोस्टली क्या है मार्केट में दो लैंग्वेज बहुत पॉपुलर है दो स्टैक मीन स्टैक और एक मन स्टैक Okay. मुझे तो इसके बारे मीन में स्टैक में मीन यस स्टैक. या मीन स्टैक. और मन स्टैक स्पेलिंग क्या है इसकी? स्पेलिंग क्या है? mean is basically it's a basically acronym for the various technologies like M is stand for your Mongo's database and E for Express and A here the difference between A and R which is differential between the front end framework okay so front end में हम दो अलग अलग टेक्नोलॉजीज यूज कर रहे हैं एक है आपका एंगुलर और एक है रिएक्ट ओके. तो ओके. वो अब ये ठीक है. मार्केट अब ये यूजर पे डिपेंड करता है कि वो एंगुलर की तरफ मूव करना चाहता है या फिर रिएक्ट की तरफ फ्रेमवर्क क्या होते हैं आपके फ्रंट एंड को और इजीली जो आपको HTML CSS बेसिक से डिजाइन करनी हो वो आपको एंगुलर ज्यादा और ये जो फ्रेमवर्क्स होते हैं उनमें इनबिल्ट लाइब्रेरीज होती है जो आपको इजीली पेज को डिजाइन करने में हेल्प करते हैं ठीक है अभी हमें एक बेसिक ठीक है. डेफिनेशन लेके चल रहे हैं कि जो HTML CSS आपको एक स्टार्टिंग से कोड लिखना पड़ रहा है वो लाइब्रेरीज के अंदर फ्रेमवर्क के अंदर आपको एक इनबिल्ट लाइब्रेरीज मिल रही है आपको वहां पे सिर्फ वो वहां से उठानी है और यूज करनी है तो ये हमारे यस ठीक है. मैम एक चीज पूछना होगा, आपने कहा था फ्रंट एंड बैक एंड. फ्रंट एंड बैक एंड डेटाबेस, ये तीनों क्या है? वेब डेवलपमेंट के हमारे देखो सबसे पहले क्या होती है कोई भी यूजर जो होता है वो क्या है रिक्वेस्ट करता है किसी भी पोर्टल के लिए उसको कोई अपनी रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है तो उसको जो एक यूजर इंटरफेस प्रोवाइड हो रहा है वो आपका क्या है यूजर के लिए वो फ्रंट एंड है उसको सिर्फ फ्रंट एंड का पार्ट दिख रहा है आगे का क्या डिजाइन है क्या बटन है क्या एक्शन उसे परफॉर्म करने हैं बट ठीक है. जो
एक्शंस वो परफॉर्म करने वाला, या जो वो रिक्वेस्ट सर्वर पे वो भेज रहा है, उसके पीछे क्या लॉजिक चल रहा है, उसके वो कैसे काम कर रहा है, वो कैसे सेंड कर रहा है, दे डोंट नो द पार्ट ऑफ द एक्चुअल वर्क ऑफ दैट। ओके, यूजर को उससे कोई मतलब नहीं है, उसको क्या है, उसका डिजाइन बस सही दिखना चाहिए, वो उसको बटन्स के लिए उसको बटन्स उसको सही दिखने चाहिए, उसको इंस्ट्रक्शन सही मिलने होने चाहिए कि वो अपनी वेबसाइट को इजीली जी हाँ, जी हाँ, नेविगेट जी हाँ। कर पाए। तो वो आपका बेसिकली क्या है, एक फ्रंट एंड का पार्ट होता है। लेकिन फ्रंट एंड सिर्फ आपका इतना ही नहीं है कि सिर्फ आपको एक डिजाइन करना है, फ्रंट एंड का काम होता है उसको बैक एंड से इंटीग्रेट करना, कि जो आपके ठीक फंक्शंस है। एक्चुअली वर्क कर रहे हैं वो ऑलरेडी जो यूजर को सिर्फ, अब आपने एक बटन तो बना दिया HTML CSS, बट वो बटन क्लिक करने के बाद उसको आपको कहाँ रिडायरेक्ट करना है, या उस बटन के बाद यूजर का जो नेक्स्ट एक्शन होगा वो किस वेबसाइट पे जाके परफॉर्म होगा, वो कौन डिसाइड करेगा? बैक एंड मतलब बैक एंड। यस। सो बैक एंड सो मतलब सॉफ्टवेयर, बैक एंड मतलब सॉफ्टवेयर, फ्रंट एंड मतलब हार्डवेयर, ऐसा तो नहीं है थोड़ा बहुत? नहीं 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 नहीं, ये सब कुछ क्या है, देखो जब हम IT की बात करते हैं ना, कि सब कुछ आपका सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर इसमें कुछ भी नहीं आता। अच्छा, ठीक है। डिप्लॉयमेंट, जब हम वेब डेवलपमेंट की बात करते हैं तो ये सारा आपका सॉफ्टवेयर का ही पार्ट है। हार्डवेयर जो होता है कि जो आपको नॉर्मली, जिसको आप टच कर सकते हो, चीजें आप जैसे आपने बेसिक डेफिनेशन होगी कि जिनको हम खोल के यूज कर रहे हैं, या फिर सॉफ्टवेयर के अंदर क्या होता है, जो भी पार्ट आप वर्चुअली यूज करने वाले हो, वो सारा आपका सॉफ्टवेयर के अंदर है। तो फ्रंट एंड हो गया, बैक एंड हो गया, ये सारा, या फिर आपका डेटाबेस, ये सब कुछ आपका क्या है, सॉफ्टवेयर के अंदर ही आएगा। तो ठीक IT की जितनी भी टेक्नोलॉजीज है वो सारी सॉफ्टवेयर में ही आती हैं। ठीक है, ओके ओके। ओके। सो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ और आपको एक नॉर्मल वेबसाइट का सिर्फ एक डेमो दे रही हूँ। उसमें मैं ये बताऊंगी कि बेसिकली आपकी HTML CSS और जावास्क्रिप्ट क्या होती है। ओके ओके, सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। ओके। ओके, सो अब आपको ये स्क्रीन विजिबल है? जी हाँ, विजुअल है। अब देखो, अब स्क्रीन पे क्या है, अगर मैं यहाँ पे, ये आपका गूगल का क्रोम ब्राउजर है, यहाँ पे क्या है, आपको एक पेज वेबसाइट ओपन हो रही है जहाँ पे डिफरेंट ऑफ आपके यहाँ पे लिंक्स है, जीमेल के, यूट्यूब के, मैप्स के। ठीक है, अब मैं इनमें से किसी पे भी क्लिक करूंगी तो वो क्या है, उस पेज पे चला जाएगा। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये इसने रिडायरेक्ट कर दिया मुझे मेल वाले पेज पे। तो अगर मुझे कोई भी वेबसाइट या पेज इस तरह बनाना हो, तो सबसे पहले वो काम होता है, हमारा HTML का पार्ट होता है। HTML क्या करता है, ये आपके पेज को एक बेसिक लेआउट देगा, एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा कि आपका पेज दिखना कैसे चाहिए। ठीक है, ठीक है। उसके बाद आती है, अब आपने HTML से हम एक बेसिक पेज तो बना लेंगे, लेकिन उसके बाद होती है कि अब इसमें देखो काफी कलर्स दिख रहे हैं आपको, एक हम्म, हर आइटम का एक प्रॉपर प्लेस है। वो हम्म, किसकी वजह से प्लेस हो पा रहा है, एक CSS की हेल्प से। CSS क्या करती है, आपके पेज को और ब्यूटीफुल और उसको यूजर इंटरेक्टिव बनाने में हेल्प करती है, ताकि ये आप किसी भी टैब में खोलो, ऐसा नहीं है कि ये पेज आपका इस स्क्रीन पे ऐसा दिख रहा है, दूसरे स्क्रीन पे वो आपको डिफरेंट दिखेगा, वो दूसरे स्क्रीन पे भी आपको सेम साइज का ही दिखेगा। ओके ओके। तो ये चीज आपकी किससे सही हो पाती है आपकी, कि अक्रॉस मल्टीपल डिवाइसेस आपका जो पेज है वो सब पे सेम दिखे। वो होता है, हम काम करते हैं CSS की हेल्प से। CSS आपके पेज को और ब्यूटीफुल और यूजर इंटरेक्टिव बनाता है। उसके बाद अब आपने पेज को डिजाइन कर लिया, पेज हो गया आपका एक सिंपल, आपने पेज तो लिख लिया किसी भी तरह से। अब उस पेज पे क्या फंक्शनैलिटी है, ये जो बटन्स काम कर रहे हैं या जो सर्च लिंक है, ये सब किसका पार्ट होता है, जावास्क्रिप्ट का। हम्म, जावास्क्रिप्ट जो है वो आपकी वेबसाइट में सबसे बड़ा काम करता है फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करने का। अगर आप पेज में कोई भी आपने क्लिक फंक्शन लगाया है, या कहीं भी आप किसी भी पेज, एक पेज से दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट कर रहे हो, वो सब किसके अंदर आ गया, आपका जावास्क्रिप्ट के अंदर। ओके, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, एक छोटा सा ब्लॉग बनाते हैं अपने सेल्फ इंट्रोडक्शन का, जिसमें हम एक HTML का लेआउट देखेंगे। ओके, ठीक है। सो अपने फाइल स्ट्रक्चर में आके एक नया फोल्डर क्रिएट कर दें। हम्म, एक सेपरेट फोल्डर बनाते हैं हम अपने वेब डेवलपमेंट ठीक है ठीक है ठीक है।
ओके, सो आपने VS कोड कभी यूज किया है? विजुअल स्टूडियो। विजुअल स्टूडियो मतलब ये एफसीपी वगैरह जो एडिटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, ये इनकी बात कर रही हैं आप? यस, विजुअल स्टूडियो कोड, जिसके अंदर हम सारे अपने ये कोड लिखेंगे। मैम एडिटिंग सॉफ्टवेयर तो मुझे आते हैं, एफसीपी एविड सारे, लेकिन ये विजुअल विजुअल ये सॉफ्टवेयर मुझे नहीं आता। ओके, सो एक मैं आपको बता देती हूँ इनका। जो विजुअल स्टूडियो कोड है ये आपका बेसिकली हम जो भी अपने कोड लिखेंगे वो सारे विजुअल स्टूडियो पे ही परफॉर्म करेंगे, ठीक है। आप अच्छा इसको सिंपली विजुअल स्टूडियो कोड जाना है, और जो फर्स्ट लिंक आपको विजिबल होगा ये वाला, इस पे जाके डाउनलोड करना है, सिंपल सा। ठीक है। ओके, ओके। ये डाउनलोड होके जो भी आपको अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग, अगर आप विंडोज यूज कर रहे हैं तो आप विंडोज यूज करें, अगर आप लिनक्स यूज कर रहे हैं या मैकबुक, तो आप उसके लिए ये वाला यूज करें, ठीक है। लिनक्स यूज करें ये वाला, और अगर आप मैकबुक यूज कर रहे हैं तो उसके लिए ये वाला डाउनलोड, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग सिस्टम के लिए अलग है ये। ओके, ठीक है। इसको इंस्टॉल करने का सिंपल प्रोसेस है। अगर आप सिंपल से आपको इस यूजर इंस्टॉलर पे जाना है, अगर आपको सिंपल इंस्टॉलेशन चाहिए और अपने प्रोसेसर के अकॉर्डिंग, लाइक ये 64 ही होगा, मोस्टली कंप्यूटर जो होते हैं वो ज्यादा 64 के ही होते हैं, तो फर्स्ट लिंक को आपको डाउनलोड कर लेना है। ओके। एक क्वेश्चन था। मेरे पास यस, मैक विंडोज भी है, दोनों चीजें हैं, तो अगर मैं दोनों को डाउनलोड करूंगा तो दोनों के फंक्शन अलग होंगे कि सेम ही चीज रहेगी? मैक और विंडोज दोनों डिफरेंट है, मतलब जो मैक वाले में है उनमें अलग उसका सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन होता है। मैक में आपका विंडोज वाला सिस्टम नहीं चलेगा। नहीं नहीं, और विंडोज के मेरा सवाल ये हम्म था कि जो जो विजुअल स्टूडियो है, जो कोड जो होंगे, हम्म, कोड्स तो सेम रहेंगे ना, चाहे मैं विंडोज में हाँ, करूँ? दोनों सेम, दोनों चीज वो सेम चलेगी, बस दोनों का डाउनलोड प्रोसेस अलग होगा, सिंपल सा। ठीक है। ठीक है। ओके। ओके, डाउनलोड वो सिस्टम के अकॉर्डिंग अलग होगा, बाकी वो सब कुछ सेम होगा आपका, और कोई डिफरेंस नहीं। ओके, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम अपने, फिर विजुअल स्टूडियो कोड को सिंपली आपको ओपन कर लेना है। अगर आपको देखो, आप इसको डाउनलोड करने की कोशिश करना, अगर उसमें आपको कोई भी एरर या फिर आप कहीं भी उसमें फंसते हो, तो आप वो सीधा क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हो, क्योंकि अभी मेरे सिस्टम में ऑलरेडी विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोडेड है, तो वो मैं दोबारा डाउनलोड करूंगी तो सही से होगा नहीं। ओके, ठीक है। तो अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है, उसमें जितने भी स्टेप्स होंगे आपको सिर्फ सब पे ओके क्लिक कर देना है, क्योंकि वो क्या है, आपसे सिर्फ फिनिश टास्क पूछेगा कि आपको उसके शॉर्टकट्स ऐड करने हैं या नहीं। ओके, ओके। अब ओके। देखो, जो हमने अपना फाइल स्ट्रक्चर, जो हमने अपना न्यू फोल्डर बनाया था, मैं इस न्यू फोल्डर को अपने विजुअल स्टूडियो के साथ खोलूंगी। ओके, तो आप चाहे तो इसको ओपन विद फोल्डर, ओके। इस वाले फोल्डर को मैंने अपने विजुअल स्टूडियो कोड में खोला है। ओके, ठीक है। खुल गया, एक सेकंड के बाद। अब इसके अंदर हम बनाएंगे अपनी सबसे पहली फाइल, जो होगी HTML। तो HTML की जो मेन फाइल होती है वो बनती है आपकी index.html के नाम से, ओके। ठीक है। ये जो index.html आपने लगाया है, ये क्या है, आपकी क्रोम को जब भी आप अपने इसको डिप्लॉय करोगे, तो ये जो .html है यही उसको बताएगा आपके डेवलपमेंट को, कि आपकी फाइल के अंदर HTML किस में है या फिर CSS। तो ये आपको ध्यान रखना है कि उसको आपका डॉट से पहले कुछ भी नेम चेंज हो सकता है, लेकिन .html जरूर लगाना है आपको। ठीक है। अब उसके बाद आता है हमारा ये जो आपका एक्सक्लेमेशन मार्क है, ठीक है। हम्म। ये क्या करता है, ये विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर एक बॉयलर प्लेट है, जिसको आप एंटर करते ही ये आपका एक बॉयलर प्लेट कोड रेडी कर देता है। मैम क्या है, कौन सा कोड है ये? जो ये मैंने एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया था, मैं आपको एक बार दोबारा से दिखाती हूँ, ये वाला जो आपका साइन है, ये विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर आपको बॉयलर प्लेट कोड, मतलब आपको एक प्री बिल्ट फंक्शन देता है कि आप इसको यूज करने से, ये आपका शॉर्टकट की है एक तरह से, कि इसको यूज करके आप HTML की जो मेन लाइब्रेरी है, जिसको हम मोस्टली हर पेज में यूज करना ही करना है, वो हम इससे इंजेक्ट कर लेते हैं। ओके, नहीं, आपने टर्म यूज किया था, प्री बॉयलर, वो टर्म क्या था? हाँ, प्री बॉयलर कोड जो है, ये प्री बॉयलर कोड मतलब ये पहले से लिखा हुआ है, इसे आप अच्छा। मैनुअली भी लिख सकते हो। ओके, मैं आपको इसको डिफाइन करती हूँ। अब टाइम सेविंग के लिए क्या करते हैं, जो हमें पता है ये हर फाइल में यूज होना है, तो जब
इंटायरली जो विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर ये ऑलरेडी चीजें हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हम उसको आजकल के टाइम में क्या है, जब सब कुछ इतना एडवांस चल रहा है, तो हम उसको एक एक लाइन स्क्रैच से नहीं लिखते। हमें पता होना चाहिए कि शॉर्टकट कीज कौन किस तरह से वर्क कर रही है। ओके, ओके ओके तो इसको आपको ये दबाने के बाद सीधा एंटर करना है और ये आपका बॉयलर प्लेट कोड रेडी हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर देखो, ये एक एक लाइन का मैं मतलब बताऊंगी। तो ये जो आपका फर्स्ट है डॉक टाइप HTML, ये क्या, अभी इसको इसके साथ चलाइए। मैं आपकी आवाज जो मैं आपकी आवाज चली गई। डॉक डॉक टाइप HTML क्या है? ये लाइन, हेलो जी। मैम आवाज। हेलो, हाँ यस, अब आ रही है आवाज। मैम डॉक टाइप क्या था? आप डॉक सही आ टाइप रही है? अब ओके, आ रही है। डॉक टाइप क्या यस। था? सो हम यहाँ डॉक टाइप HTML पे थे। ओके, सो डॉक टाइप जो है, ये आपकी फाइल को जब हम इसको, एक सेकेंड, अब हम इसको ओपन विद लाइव सर्वर के साथ ओपन करेंगे। तो जब ये पेज आपका क्रोम पे जाता है, बेसिकली आपके हम इसको डिप्लॉयमेंट के लिए भेजते हैं। तो अभी देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, ये सिर्फ आपका क्या है, एक लाइव पेज है जिसको हमने क्या है, क्रोम के अंदर ओपन किया है। तो ठीक है। ये क्रोम को कैसे पता चला कि ये एक HTML फाइल है? वो इसकी हेल्प से, कि हमने इसके अंदर डिफाइन किया है। ये आपका बेसिकली बताता है आपके क्रोम ब्राउजर को कि ये एक HTML फाइल को इंक्लूड कर रहा है। ठीक है, और डॉक टाइप HTML के देखो बहुत सारे वर्जन है, तो ये HTML5 यूज कर रहा है। ओके, ओके अब दूसरा आ गया HTML टैग, कि अब हम जो भी कोड अपने इस फाइल के अंदर लिखने वाले हैं, वो सारे क्या है, हमारे इस HTML टैग के अंदर क्लोज होंगे। ये आपका ओपनिंग टैग होता है, जो आपको दिख रहे होंगे, ये सिंपल वाले ब्रैकेट्स। ओके ठीक है, कंट्रोल स्लैश दबाएंगे, अगर हम कंट्रोल स्लैश दबाएंगे VS कोड के अंदर, तो वो आपके क्या है, इसके अंदर आप नोट्स लिख सकते हो। मतलब ये नोट्स जो है आपको, आपके लिए विजिबल होंगे इस कोड के अंदर, लेकिन वो जो HTML वाली जो पेज है आपका क्रोम ब्राउजर, उसके अंदर वो विजिबल नहीं होगा। लाइक मैंने यहाँ कुछ भी लिखा, कि ये ठीक है। आपका, ये जो ब्रैकेट्स है, ये आपकी ओपनिंग ब्रैकेट्स होती है ये वाली, और जिसके अंदर स्लैश लगा होता है, हम्म। की क्लोजिंग ब्रैकेट होती है। तो ठीक है। HTML के अंदर हमारे पास कई सारे टैग्स ऐसे होते हैं जो क्लोजिंग टैग्स के साथ होते हैं, और कुछ विदाउट क्लोजिंग टैग होते हैं। ओके ओके आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो आपका कोड हो वो HTML के अंदर हो। अब HTML के बाद सबसे मेन इंपॉर्टेंट टैग आता है हमारा हेड टैग। हेड टैग के अंदर बेसिकली हम क्या डिफाइन करते हैं, कि जो आप अपना पेज बनाने वाले हैं, आप उसके अंदर जो भी कंटेंट लिख रहे हैं, ओके, तो ये कंटेंट क्या होता है, अब कोई भी वेबसाइट है, आपको उसकी मार्केटिंग करनी होगी ओके विदाउट, तो वो मार्केटिंग, या फिर वो क्रोम को, आपके ब्राउजर को कैसे पता चलेगा कि आपके पेज में क्या इंफॉर्मेशन है? तो वो सारा हम इसके अंदर कंटेन करते हैं अपने हेड टैग के अंदर। हमारे पेज की, जैसे कि हम कोई बुक पब्लिश करते हैं, तो बुक का जो एक टाइटल होता है, जो ऑथर होता है, जो मेन पेज होता है, वो हम फर्स्ट पेज पे प्रिंट करते हैं। ठीक है। सेम उसी वे में जो भी हमारी वेबसाइट की इंफॉर्मेशन है, वो सब हम क्या है, अपने हेड टैग के अंदर डालेंगे। तो ये जो आपका मेटा, अब ये मेटा टैग से जो भी आपकी पेज के अंदर प्रॉपर्टीज होती है, वो मेटा टैग के अंदर लिखी जाती है। ठीक है, मेटा टैग क्या करता है, वो आपके पेज की प्रॉपर्टीज को ही कंटेन करता है, कि वो पेज किस बारे में है, उसके अंदर क्या कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट होने चाहिए, बाकी वो SEO रिलेटेड होते हैं क्वेश्चंस। ओके, तो अभी बस आपको ये देखना है कि मेटा टैग क्या है, मेटा टैग्स क्या होते हैं। वो आपकी वेबसाइट से रिलेटेड, जो आपका वेबसाइट किस पेज पे काम कर रहा है उसके बारे में बताएगा। उसके बाद आता है आपका टाइटल टैग। अब ठीक है। यहाँ पे देखो, ये इस पे देखो, हर एक यहाँ पे आपको डिफरेंट पेजेस ओपन दिख रहे होंगे, लेकिन सबका क्या है, अलग अलग नेम है, जिससे मुझे पता चल रहा है कि मेरे पास यहाँ पे कौन सा पेज ओपन है। हर किसी का टाइटल अलग दिख रहा है। ये टाइटल टैग किसकी हेल्प से आ रहा है? जो हेड के अंदर हमने टाइटल दिया है, अभी जो हमने डॉक्यूमेंट खोला था, जो हमने पेज खोला, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट। हाँ जी हाँ ठीक है।
ओके। यहाँ पे चेक करोगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट। तो ओके। आपको अपने पेज का क्या टाइटल देना है वो हम डिफाइन करते हैं टाइटल टैग के अंदर। ठीक है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिखा है तो ये इसलिए डॉक्यूमेंट दिख रहा है। अगर मैं इसको एक वेब डेवलपमेंट पेज बनाना चाहती हूँ या इसको एक मैं ब्लॉग पेज बनाना चाहती हूँ, जो भी टाइटल मैं यहाँ पे दूंगी वो मेरा वहां विजिबल हो जाएगा। अब इसको हम सिंपली सेव करेंगे, ओके। कंट्रोल एस करके। और ये ओके। देखो अब यहाँ पे क्या आ गया, ब्लॉग पेज आ गया आपका। ठीक है। अब टाइटल दे दिया हमने, उसके बाद जो है हमें क्या चेंज, अब हमें अपने टैग्स देखने हैं कि इस पेज में मुझे एक, अब मैंने H1 टैग यूज किया। H1 टैग बेसिकली हम किस लिए यूज करते हैं कि जब भी हमें अपने पेज पे कोई भी मेन हेडिंग शो करनी हो। ओके। तो ये मैंने एक H1 टैग डाला और इसको डाल दिया, मैंने सेव कर दिया। ओके। अब ये आपका आ गया वेब डेवलपमेंट ब्लॉग। अब देखो किसी भी पेज पे आप, अगर आप इस पेज का यूआरएल, इस यूआरएल को आप कहीं भी शेयर करोगे ना तो वो सेम आपको ऐसा ही पेज दिखेगा। अभी ये एक बेसिक HTML पेज है कि अगर आप इस पेज पे कुछ भी लिखोगे वो आप दूसरों को भी शेयर कर सकते हो। ओके। तो अब ये हमने एक हेडिंग डाल दी। अब इसी वे में अगर हम जैसे नॉर्मल ऐसे लिखते हैं, वो पैराग्राफ हमें HTML में एक डिजाइन करना हो तो उसके लिए कुछ बेसिक टैग्स होते हैं जो हमारे, अब ये स्पेसिफिक टैग हम किस लिए यूज करते हैं, आप, हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हम डायरेक्ट वेब डेवलपमेंट ब्लॉग लिखेंगे तो वो भी विजिबल होगा यूजर को। लेकिन हमने इसे H1 के अंदर ही क्यों लिखा है। H1 के अंदर आपने कहा कि मेन हेडिंग होती थी। देखो अगर मैं नॉर्मल भी वेब डेवलपमेंट लिखूंगी, हाँ। ठीक है, ओके। तो ये चीज भी मुझे यहाँ पे विजिबल होगी। बट इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा, ये इसने नॉर्मल ट्रीट किया, ठीक है, वेब डेवलपमेंट की तरफ। इसको कुछ ठीक नहीं है। पता कि ये हमारे पेज की हेडिंग है, ये क्या है वेबसाइट को। जब हम कोई भी HTML पेज डिजाइन करते हैं तो वो बेसिकली नॉर्मल क्या है, सबसे पहले हम ब्लॉगिंग के लिए डिजाइन करते हैं। अब आप कोई भी सोचो ब्लॉग लिख रहे हो तो वो ब्लॉग किस लिए लिख रहे होंगे, सिंपल से पब्लिश करने के लिए। वो पब्लिश अगर आपका होगा तो आप अकेले यूजर तो हो नहीं कि जो किसी एक उस टॉपिक पे ब्लॉग लिख रहे हो। एम आई राइट। यस यस तो यस। यस, तो उस ब्लॉग को, आपका ब्लॉग दूसरों से कैसे डिफरेंशिएट है या फिर उसमें दूसरों से क्या चीजें अलग है, या फिर दूसरा यूजर जो है उसमें क्या कीवर्ड्स डालेगा, तो वो ब्लॉग आपके क्रोम पे विजिबल होना चाहिए या यूजर के सर्च इंजन पे विजिबल होना चाहिए। ये सारे टैग्स आपके जो क्राउलर इंजन होता है गूगल का, उसको हेल्प करते हैं आइडेंटिफाई करने में कि आपके HTML पेज के अंदर क्या कंटेंट है। ओके। ठीक ठीक है, है। तो इसीलिए इसलिए हम अपने जो भी लाइन ऑफ कोड होता है या जो लाइन ऑफ मैटर होता है वो जरूरी है। अगर हम इसे एक बेसिक SEO उसका चाहिए कि हमारी वेबसाइट का SEO सही से हो, अच्छे से वो सर्च इंजन पे परफॉर्म हो, जो क्राउलर है वो उसको अच्छे से इंडेक्सिंग कर पाए, हमारे पेज के अंदर जो कंटेंट है उसको अच्छे से रीड कर पाए, उसके लिए जो हमारा कंटेंट है वो प्रॉपर टेक्स्ट के अंदर विजिबल होना चाहिए। ओके, तो अब मैंने H1 के अंदर जब वेब डेवलपमेंट ब्लॉक लिखा तो गूगल क्या है इस पेज को इंडेक्स करेगा कि ये इसकी मेन हेडिंग है। अगर मैं यहाँ पे आपको क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट, सॉरी कंट्रोल U प्रेस करना है, और ये क्या है आपका व्यू सोर्स पेज, जो कि आप क्या है, ये ब्राउजर के पास जाता है। ये पेज किसके पास गया है, ब्राउजर के अंदर आपने जो भी कोड लिखा है वो ब्राउजर के पास क्या गया है, वो इस फॉर्म में गया है, जो ठीक ये है। बता रहा है इसको कि ये एक मेन हेडिंग पेज है। तो यूजर जो क्या है इन, अब जब भी आपका पेज ये पब्लिश होगा तो जो क्राउलर है वो डिफाइन करेगा कि अगर आपने डेवलपमेंट लिख रखा है तो आपको इस पेज पे रिडायरेक्ट करे। ठीक है, ठीक है। ठीक है। तो इसी तरह से हमारे पास हेडिंग के लिए 6 टैग्स होते हैं, टोटल सिर्फ 6 टैग्स है, कितने, 6 टैग्स। हाँ, H1 से लेके H6 तक। तो
अपने ऑर्डर के हिसाब से सेम ये भी क्या है, इनकी जो फॉन्ट वेट और जो इनका फॉन्ट साइज है वो छोटे होते जाते हैं, ठीक है। ओके। तो इनमें बस इतना ही डिफरेंस है, इनको आप खुद एक्सप्लोर करना है, ये जितने भी टैग्स है तो ये इनमें जो बस एक एक टैग है। H1 से फर्क ये है कि इनके फॉन्ट छोटे होते जाते हैं, राइट? हाँ, ये जो है इनका बस साइज छोटा होता जाता है, तो आपके पेज के अकॉर्डिंग जो आपको, जो अगर हम कोई वेबसाइट लिख रहे हैं तो जरूरी थोड़ा ना कि हम सारे पेज में H1 ही यूज करेंगे, कहीं पे हमें उससे छोटा टाइटल चाहिए, उसके बाद हमें उससे छोटा, तो इसके लिए हमारे पास HTML के अंदर 6 टैग्स अवेलेबल है, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद समझो, ये जो पेज, ये जो टैग है हाँ, ये सेम ही रखना है हमें, और मुझे इसको और बोल्ड दिखाना है, तो उसके लिए हमारे पास एक टैग होता है स्ट्रॉन्ग, ठीक है। ओ, ओके, ओके। अब इसको इसके अंदर मैंने रख दिया, तो ये क्या है, इसको बोल्ड कर देगा। बोल्ड कर देना, ठीक है। ये अगर आपको अपने सेम साइज के अंदर सिर्फ इसको भी बोल्ड करना है तो ये इसके लिए भी आप बोल्ड कर दिया। ठीक है, अब ठीक है, होते हैं, हमने H1 तो दे दिया, ठीक है। अब हमें एक सिंपल पैराग्राफ, मैं आपकी आवाज गई। ये सिंपल एक पैराग्राफ लिखिए। ठीक है, ठीक है, ओके। हेलो, हाँ, या सो ये जो, यस, ये जो लॉरेम यहाँ पे आपकी आवाज गई, मैं कनेक्ट हो फिर जाए से। तो मुझे बता देना, ठीक है। मैं आपकी आवाज हेलो, फिर से हाँ, आपकी आवाज गई है। हेलो, आप क्या? यस, 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 आप बोल रही। हेलो, यस, 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 अब हेलो, आ हेलो। गई। आ गई, आ गई, आ गई। सो नेक्स्ट हो गया, हमने H1 हेडिंग टैग देख लिया, अब हमें उनको जो उनका डिस्क्रिप्शन लिखना होगा वो हम इसके अंदर लिखेंगे, अपने पी टैग्स के अंदर। मैम एक मिनट। H1 to H6 मैंने फॉन्ट्स। डिस्क्रिप्शन आप, हेलो, मैम H1 से X6 तक अपने फॉन्ट डिसाइड किए, साइज। फिर स्ट्रॉन्ग लेवल पे वो बोल्ड कर सकते हैं, और जो डिस्क्रिप्शन है वो पी टैग में करते हैं, राइट? हाँ, जो भी यस, जो भी डिस्क्रिप्शन है वो हम अपने पैराग्राफ टैग, पी जो होता है, जो भी आपको अपना पैराग्राफ लिखना हो वो हम पी टैग्स के अंदर ऐड करेंगे, ओके। ओके, ओके। उसके बाद आते हैं, अब आपको कुछ लिस्ट बनानी हो, अगर हमें कोई लिस्ट सिंपल लिखनी हो तो हम तीन तरह की लिस्ट यूज करते हैं HTML के अंदर। एक होगी, सॉरी, दो तरह की, एक होगी आपकी ऑर्डर्ड लिस्ट और एक होगी आपकी अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए हम यूज करेंगे ओएल टैग, जहाँ पे आपको न्यूमेरिक टैग्स पता हो, ठीक है। अब इसके अंदर ओएल के अंदर आप अपनी कुछ नंबर ऑफ पॉइंट्स लिस्ट लिखना चाहते हैं, तो ओएल टैग के अंदर ही आपका लिस्ट टैग होना चाहिए, ठीक है। अब इसके अंदर भी हमने अपना कुछ मैटर लिखा भी फिलहाल। मैम नहीं समझा, ओल्ड टैग के अंदर क्या होना चाहिए? हेलो, इस ओल्ड टैग के अंदर क्या होना चाहिए? जो हम अपनी लिस्ट बनाएंगे, जो हमारे बुलेट पॉइंट्स होते हैं, जी हाँ, एक जी हाँ, जी। पैराग्राफ के अंदर बुलेट पॉइंट्स भी है। पैराग्राफ तो क्या है, आपका सिंपल एक ही लाइन में सारे वर्ड्स को डाल देगा। ठीक है, ओके। देखो, ये जो हमारा ये पी टैग था, अब ये जो मैंने वन पॉइंट नंबर वन के साथ आया है, ये किसकी वजह से आया है, क्योंकि इसको हमने किसके अंदर लिखा है, ओएल के अंदर। ओल्ड के अंदर, क्योंकि ये ठीक क्या है। बता रहा है यूजर को, हाँ, ये यूजर को उसने बता दिया कि ये क्रोम को बता दिया एक लिस्ट है, तो इसी तरह से आप जितने भी पॉइंट्स लिस्ट के अंदर डालते जाओगे तो वो ऑर्डर्ड वाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ऐड हो जाएंगे, ठीक है, ओके। ठीक है। तो अगर मैं ऐसे ही सेम दो तीन लिस्ट और ऐड करूं, यहाँ पे हम देखें तो देखो यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 5 ऐड हुए हैं। और अगर आपको ये चाहिए कि ये अनऑर्डर्ड लिस्ट चाहिए, हमें ये नॉर्मल HTML नहीं, हमें नंबर वाइज नहीं दिखाने, हमें सिंपल सी बुलेट पॉइंट चाहिए, तो उसके लिए हम यूज करते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। ठीक है, वो होता है आपका यूएल टैग से। यूएल के अंदर जो भी आप लिस्ट लिखोगे वो नॉर्मल बुलेट पॉइंट्स में आपको विजिबल होंगी। ओके, ओके।
लिस्ट और लिख लेते हैं हम इसको, हम्म। सेव कर लेते हैं। तो तो देखो इन दोनों मतलब डिफरेंस में क्या है। यस। ऑर्डर में बुलेट पॉइंट्स होंगे और ऑर्डर्ड में हाँ पैराग्राफ पैराग्राफ वाइज होगा। हाँ। ओके। अनऑर्ड ये देखो, अनऑर्डर्ड में क्या है, इसने आपके बुलेट पॉइंट्स दे दिए कि जरूरी नहीं है कि आपके सीरियल वाइज चल रहे हो, लेकिन जहाँ पे आपको सीरियल वाइज चीजें डिफाइन करनी हो या न्यूमेरिकल चीजें आपको दिखानी हो, वहां पे आप क्या है ऑर्डर्ड लिस्ट का यूज कर सकते हैं अपने पेज के अंदर। ओके। ठीक है। अब हम आते हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट हो गया हमारा, पैराग्राफ हो गया। अब देखो बहुत सी कंटेंट कई बार ऐसा होता है, आपने मैथ्स में फॉर्मूले देखे हैं, ए रेज्ड पावर बी, यस जी हाँ। ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ये। तो जब हम जो ऊपर का जो होल स्क्वायर होता है वो एचटीएमएल के अंदर हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते। अगर मैंने ए प्लस बी हम्म। का एस, अगर मुझे अब यहाँ पे स्क्वायर लगाना हो तो आप बी के ऊपर डायरेक्ट स्क्वायर लगा सकते हो। नहीं उसके लिए तो नहीं वो। यस, तो उसके लिए एचटीएमएल में, या उसके लिए एचटीएमएल में कोड होता है हमारे पास। अब इसको हम लिखेंगे, लाइक अभी मैं इसको कोड के अंदर लिख रही हूँ कि सिंपल ये मेरा क्या है, एक कोड है ए प्लस के अंदर मैंने डाला 2। तो ये जो एस यू सबस्क्रिप्ट टैग होगा, इसको हम फुल फॉर्म बोलते हैं सबस्क्रिप्ट, ठीक है। जो एस यू पी है, ओके। एस यू पी टैग, इसका पूरा नेम सबस्क्रिप्ट टैग है। और ये क्या है, आपको किसी की भी ऊपर उसकी होल स्क्वायर पावर लिखनी हो या फॉर्मूले के लिए, तो उसके लिए हम सब टैग यूज करते हैं। ओके। अब अच्छा। यही यही जो ए प्लस बी की उसके ऊपर होल स्क्वायर लगाया, अब इसको अगर हमें नीचे लिखना हो तो उसके लिए यूज करते हैं हम सी ओ सॉरी एस यू। सबस्क्रिप्ट आपका ऊपर के लिए होता है और जो एस यू बी होता है ये आपका नीचे वाले के लिए होता है। अच्छा ओके। ठीक है, ये आपका हो गया नीचे वाले के लिए। ओके ठीक है। ये सारे ये सारे क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट टैग्स है। अब हम पहले क्या करते हैं, एक ब्लॉग उठाते हैं किसी भी वेब, ठीक है, होम पे। ठीक है। सिंपल अगर हमें कोई ब्लॉग देखना हो और उसके जो जैसा जैसे नीचे जो नीचे टू होता है उसका फॉर्मूला क्या था? क्या। जरा एक बार दिखाइए, जो नीचे टू ए प्लस बी जो नीचे टू होता है उसका फॉर्मूला सुपर में क्या है? हाँ, ए प्लस बी के, ये देखो, जब आपको ऊपर की साइड लगाना हो तो एस यू पी, ये याद करो सुपर, और जब नीचे की साइड हो तो एस यू बी सब नीचे के लिए, ठीक है। अच्छा एस यू पी और एस सुपर यू ऊपर के लिए और सब नीचे के लिए। एस यू। ओके गॉट इट मैम। ठीक है। ठीक है। ओके। अगर हम कोई सिंपल सा पेज उठाते हैं, ये आपका एक ब्लॉग है, तो इस ब्लॉग के अंदर देखो अभी हमें क्या, एक अगर सिंपल ब्लॉग लेते हैं अभी हम फर्स्ट क्लास के लिए हिसाब वो पे। कोई टॉपिक सर्च कर लेते हैं। चलो एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग बनाते हैं। एचटीएमएल का ही इंट्रोडक्शन पेज बनाते हैं, एचटीएमएल के ही बारे में हमें सारी इन्फॉर्मेशन लिखनी है एक एचटीएमएल के पेज में, ठीक है। ये आपके लिए एक टास्क भी है। असाइनमेंट है मेरा क्या। ये मेरा असाइनमेंट है। हेलो ये मेरा असाइनमेंट है। राजीव, कैन यू, राजीव क्या आप एक बार रिपीट कर सकते हो क्वेश्चन। लेकिन ये हेलो। मुझे आपकी आवाज आ रही है। हाँ मैं कहती हूँ आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है।
एक सेकंड, जस्ट एक मिनट। हेलो। यस। हाँ। तो अब हम क्या कर रहे हैं, एक सिंपल सा HTML पेज बनाते हैं जिसके बारे में हम HTML के सारे टैग्स डिफाइन करेंगे। ठीक ओके, है। टाइटल के अंदर हमने HTML पेज डाल दिया। ठीक एक है। हम डालेंगे फैब। आपने देखा होगा हर पेज के अंदर आपको एक आइकन विजिबल हो रहा है, लेकिन हमारे पेज के अंदर क्या है, नॉर्मल सा वेब आइकन डिस्प्ले हो रहा है। तो राइट। बाकी पेजेस में क्या है, उन्हीं के पेज का एक सिमिलर आइकन आपको विजिबल हो रहा है। तो ये आइकन जो है किसी भी पेज में, ये आइकन किसी भी पेज में आपको लगाना हो तो उसके लिए क्या करेंगे, हम सिंपल लिंक फैब आइकन, ओके, इस वाले लिंक को यूज करके। और यहाँ पे जो HREF है, इस HREF के अंदर आपको क्या डालना है, आपको अपनी इमेज की लोकेशन डालनी है, जहां भी आपने अपनी मतलब जो भी इमेज आप अपने वेबसाइट पे लगाना चाहते हो एज ए आइकन, वो इस HREF टैग के अंदर डालेंगे हम। ठीक है। तो अगर ये समझो हम कोई, हाँ, तो ये जो HREF है ये बेसिकली आपकी इमेज का एड्रेस मतलब कंटेन करता है कि आपकी इमेज कहाँ पे रखी है। ओके। अब सपोज मैं अभी कोई गूगल से कोई इमेज दिखा लेती हूँ। ठीक है। ठीक है, Google HTML image। तो ये समझो मुझे आइकन लगाना है, तो मैंने क्या किया, इसका लिंक एड्रेस कॉपी किया। और इसको कहाँ लगाएंगे हम, अपने इस फैब HREF रिप्लेस किया और इसको हम पेस्ट कर देंगे। ठीक है। अब जो है आपके पेज के अंदर भी सेव इन हुआ, वो शिफ्ट ऑल्ट F करके फॉर्मेट कर दिया। कई बार कोई क्या है, जो वेबसाइट की यूआरएल्स होते हैं वो काम नहीं करते, इसको दूसरे ही पर चेंज करके देख लेते हैं। ओके ओके ओके। चेंज करके देख लेते हैं। तो ये पूरा पेस्ट नहीं हो रहा है। ये पूरी रेट तो है, ये पूरी मटेरियल ये बढ़िया है। नल का मिले नाश्ता से लेगा बढ़िया का पूरी है, और सब्जी भी दे देती है। लिंक तो ये काम नहीं कर रहा है, एक सेकेंड इसको हम चलो, गूगल एड्रेस वाला मैं आपको बाद में बताऊंगी। इसका एक और अल्टरनेटिव ऑप्शन हो सकता है, हम अभी क्या है, इमेज को डाउनलोड करके लाइक आपके फाइल में, अभी हम लोकल से करते हैं, अपनी इस इमेज को डाउनलोड करते हैं।
हाँ 60 रुपये में पेमेंट करा 60-55 मंगा लेंगे 60-55 के लगभग इधर पे 75 ना ठीक है। यहाँ पे हमने अभी जो हमारे लोकल के अंदर सिस्टम के अंदर ये जो इमेज है वो डाल दी, ठीक है। यूआरएल एड्रेस में इशू हो सकता है कि वो उसको ना ले पा रहा हो, तो इसलिए अभी लोकल वाला फाइल से यूज कर लेते हैं। हमारे पेज का टाइटल चेंज हो गया, हेडिंग टैग्स हो गए थे, पैराग्राफ हो गया। तो बेसिक एलिमेंट से जो हमारे HTML के वो कवर हो गए हैं, बस जो मेन हेडिंग टैग से। ओके, ये सारा आपको हो गया बेसिक। अब आते हैं हम अपने एलिमेंट्स पे। कि आपका एक टैग और रह गया, ये देखना है। मैंने हेड टैग तो बता दिया था कि हेड टैग क्या करेगा, जो आपकी पेज के अंदर की इंफॉर्मेशन होगी वो सारा आपको हेड के अंदर देना है। लेकिन पेज पे जो भी आप कंटेंट लिखने वाले हैं वो सारा आपका किसके अंदर होना चाहिए, ये ध्यान रखना है आपको, इस बॉडी टैग के अंदर। ठीक है, इस बॉडी टैग से बाहर नहीं लिखना। अब आता है H1 H2 बेसिक एलिमेंट्स जो थे वो हमने देख लिए। अब आपने देखा होगा कि हर पेजेस में कुछ इमेजेस थी वहां पे। तो HTML इस पेज के अंदर, हाँ पेज के अंदर अभी हमने नॉर्मल फैब आइकन तो लगा लिया। अगर आपको इमेज लगानी है तो वो डालेंगे हम अपने इमेज टैग के अंदर। इमेज भी सेम जैसे हम अभी लिंक आइकन लगा रहे थे, ये भी लगाने का आपके सेम तरीके हैं आपके। या तो आप चाहे गूगल का एड्रेस कॉपी करके वो इस SRC के अंदर लगा लीजिए, या फिर जो आपके पास लोकल में फाइल है, मतलब आपके फोल्डर में होनी चाहिए, उस फाइल का एड्रेस आप अपने SRC को दे दीजिए। ठीक है, अभी जैसे मैंने यस इमेज आपने कहा ऐसा आशीष आपकी इमेज का एड्रेस है। हाँ, ये जो है SRC के अंदर क्या है, आपको अपनी इमेज का एड्रेस देना है कि आपकी इमेज है वो कहाँ पे रखी है। SRC इमेज का ठीक है, एड्रेस दे रहा है, फिर हम जो HREF को क्या कर रहा था, HREF HREF देखो, ये जो है ये लिंक, ये वाला जो आपका लिंक था ये बेसिकली आपके पेज के मेटा टैग्स की इंफॉर्मेशन कंटेन करता है। ये ठीक है। फैब आइकन था, ठीक। HREF और ये इमेज टैग के अंदर हमेशा SRC यूज होता है, और लिंक के अंदर हम HREF टैग यूज करते हैं। ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक ये दोनों बेसिकली आपका एड्रेस ही बताता है, बट ये दोनों टैग्स अलग अलग है। वो लिंक टैग है और ये आपका इमेज टैग्स है। ये अब ये जो क्या है, ऑल्ट टैग। अब इसके अंदर देखो, ये ऑल्ट एट्रीब्यूट है। ये प्रॉपर्टी क्या करता है इमेज के अंदर, कि सब कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा नेट नहीं चल रहा होता है, जब इमेज डाउनलोड नहीं होती तो वहां पे एक छोटा सा टेक्स्ट लिखा हुआ आता है, या एक वेब इमेज। यस, तो वो क्या है, ऑल्ट के अंदर हम हमेशा अपनी इमेज का नाम डिफाइन करते हैं, कि कई बार जिससे यूजर को पता चले कि यहाँ पे अगर इमेज नहीं है तो वो किस चीज की इमेज है। ये आपके बेसिकली क्रॉलर के लिए होता है कि वो इस इमेज को रीड कर पाए कि ये क्या ले रहा है। ठीक है, ओके, तो बेसिकली आप ये समझ सकते हो कि ऑल्ट के अंदर आपको अपनी इमेज का नाम देना है। ओके, ठीक है, अभी मेरे पास जो इमेज थी मैंने उसी इमेज को यूज किया। अब इसके अंदर अगर आपको इसका हाइट विड्थ कम करना हो तो वो हाइट विड्थ क्या है, हम अपने हाइट एट्रीब्यूट प्रॉपर्टी होती है इनकी। अब इमेज की देखो, अभी तक ये जो हम टैग्स यूज कर रहे थे, H1 H2 P2, जो भी सारी नॉर्मल कंटेंट लिख रहे थे, ये सब क्या है, एलिमेंट्स होंगे HTML के। ठीक है, दूसरा, अब लेकिन जब मैं इमेज के अंदर ये जो ऑल्ट के अंदर मैंने टेक्स्ट लिखा है कंटेन,
ये यहाँ पे कहीं विजिबल नहीं है ये, लेकिन ये एसआरसी यहाँ पे कहीं विजिबल नहीं है, लेकिन हमें क्या है अपने कोड में मेंशन कर रहे हैं। ये सब ठीक क्या है। है, आपके एट्रीब्यूट होते हैं। ये एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, आपके टैग्स की प्रॉपर्टीज कंटेन कर रहे होते हैं कि इन टैग्स का क्या वर्क है या ये क्या इंफॉर्मेशन कंटेन कर रहे हैं। ओके। ओके। ओके, सो एट्रीब्यूट्स और एलिमेंट में डिफरेंस समझ में आ गया। एट्रीब्यूट्स अब कहते हैं इसके, कि टेक्स्ट यस, क्या कंटेन कर रहा है, राइट? हाँ, अब यहाँ पे मैंने विथ ऐड की, लाइक मुझे ये इमेज का साइज छोटा करना है, मैंने 100, ओके, ये 100 ऐड किया विथ, तो ये क्या है, इमेज के साइज को छोटा कर देगा। लेकिन ये विथ क्या हो गई, अगर कोई, अब कई बार इंटरव्यूज में क्वेश्चन पूछा था कि एलिमेंट्स और एट्रीब्यूट्स में क्या डिफरेंस है। बेसिकली एलिमेंट्स क्या है, हमारे नॉर्मल टैग्स होते हैं जो डिटेल्स कंटेन करते हैं, लेकिन जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो उन डिटेल्स से की प्रॉपर्टीज या क्वालिटीज बताते हैं। ओके, ओके। ओके। जैसे अब देखो, ये जो इमेज थी आपकी वो छोटी हो गई। राइट। राइट। यस, सो विथ, विथ बेसिकली वही है, इसकी विथ कम करने के लिए, और हाइट जो होती है, अगर आपको हाइट वाइज उसको बड़ा या छोटा करना हो तो वो हाइट में आप उसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, जो प्रॉपर सीएसएस की बात है या उसकी जो डिजाइनिंग है वो हम स्पेसिफिकली अलग से उसमें देखेंगे। आज बेसिकली हम सिर्फ सारे टैग्स देखते हैं। ओके, ओके। ओके। अब इमेज तो आ गई यहाँ पे, अब हो गया हमारा, एक पेज के अंदर हम कंटेंट लिख सकते हैं, इमेज लिख सकते हैं। ओके, अब पेज में मुझे नॉर्मल इन दोनों जैसे पैराग्राफ के बीच में अगर मुझे एक लाइन चाहिए, ओके। तो उसके लिए हमारे पास होता है HR टैग। क्या होता है? ये क्या आपके लिए हॉरिजॉन्टल लाइन, अब देखो इसमें, हाँ, HR टैग, HR टैग जो अच्छा। होता है आपका, ये क्या है, दोनों के बीच में हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर आपको कोई अपने पेज के अंदर नॉर्मल लाइन चाहिए हो तो सिंपल हाँ। HR टैग का यूज करके हम डाल सकते हैं, जरूरी नहीं यहाँ पे हम इमेज डालें। ओके। अब एक ओके। चीज देख रही होगी आपने कि अभी तक जितने भी टैग्स यूज किए थे हमने, उन सब में ओपनिंग और क्लोजिंग टैग दोनों थे। हाँ। ठीक है। वो सब देखो दो टैग्स के बीच में, लेकिन जो HR है हमारा वो सिंपल एक था क्लोजिंग, मतलब सिंपल एक टैग यूज हो रहा है, कोई एरर नहीं है यहाँ पे, दूसरा इसका क्लोजिंग टैग नहीं है। तो HTML के अंदर हमारे कुछ ऐसे टैग्स होते हैं जिनमें क्लोजिंग टैग की नीड नहीं होती। उन्हीं में से एक होता है हमारा BR टैग। BR टैग होता है बेसिकली अगर आपको किसी लाइन के बीच, किसी लाइन के बाद एक ब्रेक चाहिए हो। ठीक है, ओके। सपोज ये मेरी एक लाइन है, ओके। ये दोनों, अभी ये पैराग्राफ क्या है आपको एक लाइन में दिख रहा होगा, अगर मैंने इस एम, यहाँ पे मैंने लगा दिया BR टैग, तो ये एमिट के बाद जो भी लाइन ऑफ कोड लिखा होगा वो सारा क्या है, नेक्स्ट लाइन में चला गया होगा। ठीक है। ठीक है। ठीक है, सेव नहीं किया था, एक सेकेंड। ठीक है, तो देखो एमिट के बाद वाला जो भी कंटेंट था वो सारा क्या है नीचे, तो नेक्स्ट लाइन ऑफ टैग के लिए भी। तो उसी तरह से HR BR ये सारे हमारे टैग्स होते हैं जो विदाउट क्लोजिंग टैग होते हैं। ओके। नाउ अब बात करते हैं स्टाइल। देखो स्टाइल के लिए मैंने आपको बताया था कि हम CSS यूज करते हैं जो कि आपके पेज को ब्यूटीफाई करता है। अब अभी में जो भी कंटेंट होगा आप क्या देख रहे होंगे उसको कि वो बस हम लिखते जा रहे हैं ना, इसका कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर है। ये वेब डेवलपमेंट भी एक साइड में पड़ा हुआ है, इसे हम अगर हमें सेंटर में करना हो कि हेडिंग, एक नॉर्मल लेआउट जो होता है किसी भी पेज को हम पब्लिश करेंगे, तो इस पेज को तो हम पब्लिश नहीं कर सकते ना, उसके लिए क्या यूज करते हैं हम, स्टाइलिंग। ठीक है, ठीक है। ठीक है। तो स्टाइल, यस। अब इस पेज को अगर हमें स्टाइलिंग करना हो तो HTML के अंदर कुछ टैग्स ऐसे होते हैं जो बेसिक स्टाइलिंग प्रोवाइड करते हैं। बेसिक लाइक आप किसी का कलर चेंज कर सकते हो, थोड़ी सी फॉर्मेटिंग, लाइक उनका स्टाइल
बोल्ड से इटैलिक कर सकते हो, जैसे हम वर्ड में यूज करते हैं। एक वर्ड में जो भी फंक्शनैलिटीज होती है वो आप HTML के अंदर यूज कर सकते हो। ओके ओके लेकिन यस, लेकिन अगर आपको एक प्रॉपर डिजाइन चाहिए, प्रॉपर एक ब्यूटीफुल पेज चाहिए जो कि रिस्पॉन्सिव भी हो सारे मीडिया। अब अभी क्या है, एक चीज इसमें मैं अगर आपको दिखाऊं, आप करना है Ctrl+Shift+I। ठीक है, Ctrl+Shift+I प्रेस करोगे तो ये वाला जो आइकन है, आपको इस आइकन पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे देखो आपको डिफरेंट डिवाइसेस दिखेंगे। इस डिवाइस के अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हो कि मेरा जो पेज है वो हर डिवाइस पे कैसे दिख रहा है। तो अभी देखो जो कंटेंट था, ये सिर्फ हमने कंटेंट का यूज किया है, ये सब क्या है, अब इन दोनों के साइज में अंतर आ गया। ओके, ओके अभी तो हमने इसमें कुछ ऐसा स्टाइल नहीं यूज किया, इन दोनों के ये साइज में अंतर आ गया, डिफरेंस नहीं, ये डिफरेंसेस हो गए। अब ये सब चीजें हम किन से मेंटेन करते हैं, अपने CSS से, कि जो भी कंटेंट हमने लिखा है वो हर डिवाइस पे सेम होना चाहिए। ओके ओके तो बेसिक स्टाइलिंग टैग की बात करें तो अगर मुझे किसी का कलर चेंज करना हो, H2 के अंदर, इसको नॉर्मल कर दे पहले। तो यहाँ पे मैं जो स्टाइल टैग के अंदर H2 के अंदर, मुझे अगर H2 का कलर चेक करना है तो मैं H2 पे स्टाइल लिखूंगी, और इसके अंदर जो मुझे इसकी प्रॉपर्टी चेंज करनी है वो मैं डालूंगी कलर के बाद सेमीकोलन, और जो भी कलर आप देना चाहते हो लाइक रेड ब्लू या जो भी, वो हम यहाँ पे डाल देंगे। तो अब जो है ओके आपका H2 नॉर्मल टेक्स्ट था वो क्या है, ब्लैक से ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। ये रहा, okay, ठीक है। ओके तो अब ओके ये जो आपका ठीक है नॉर्मल टेक्स्ट है ये किसमें कन्वर्ट हो गया, ब्लू में। ब्लू में ठीक है ठीक है, H1 के अंदर से मैंने कंटेंट हटा दिया था। अब देखो यही चीज अभी क्या है, ये सिर्फ एक बेसिक स्टाइलिंग प्रोवाइड कर रही है। अब अगर आपका क्वेश्चन होगा कि सपोज मेरे पेज के अंदर 1000 लाइन्स ऑफ कोड हो, तो आप 1000 लाइन ऑफ कोड के अंदर तो एक एक स्टाइल टैग नहीं लिखोगे ना। हाँ, ठीक है सो यस, उसके लिए ये HT जो बेसिक जो ये इनलाइन स्टाइलिंग होती है, इसी स्टाइलिंग को हम क्या बोलते हैं, अभी जो मैंने स्टाइल परफॉर्म करके दिखाया इसको हम बोलते हैं इनलाइन स्टाइल। ये है इनलाइन स्टाइलिंग, जो हम तभी यूज करते हैं जहाँ पे हमें बहुत ही इसका बहुत कम यूज हो रहा हो, लाइक हमें पता है कि ये ज्यादा यूज नहीं होने वाला, इसको बार बार चेंज नहीं करना, इन फ्यूचर हमें इसको ज्यादा चेंज नहीं करने पड़ेंगे। ठीक है, उसके लिए हम इनलाइन स्टाइलिंग यूज करते हैं। नहीं है देखो ये जो स्टाइलिंग है, हम्म, अब देख आपने देखा होगा जो वेबसाइट्स होंगी उनका डिजाइन अपडेट होते रहता है। हाँ राइट राइट तो वो जो डिजाइन अपडेट होता है, तो आपने कभी देखा होगा कि एक जगह पे लोगों का कलर सही है और दूसरी जगह पे लोगों का कलर अलग है। राइट राइट ठीक है नहीं, तो वही चीज क्या है, अब ये डेवलपर्स का काम होता है कि वो अपने कोड को इस वे में मेंटेन करें कि इन फ्यूचर उन्हें कभी भी कोई चेंजेस करने हो तो उसके लिए उन्हें एक्स्ट्रा टाइम या फिर एक्स्ट्रा एफर्ट की जरूरत ना हो। अब सपोज मैंने एक H2 के अंदर अगर मैं इनलाइन स्टाइल यूज कर रही हूँ अपने कलर चेंज करने के लिए, ठीक है, ठीक है कलर ब्लू, अब यहाँ पे मेरे पास एक पेज नहीं, मैं 1000 पेजेस बोल रही हूँ। तो ठीक है अगर कोई मुझे कहेगा कल को, अगर कल को मुझे कंपनी ने टास्क दिया कि अब आपको अपने ब्रांड का कलर रेड की जगह ब्लू करना या ब्लू की जगह रेड कर देना है, ठीक है, अब तो ठीक है अब वो कहेगा कि भाई तुम्हें कलर चेंज करने में अब इतना टाइम लगेगा 1000। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, सिंपल सी एक्सटर्नल स्टाइल शीट। स्टाइल टैग के अंदर हाँ ये आपकी एम्बिट सॉरी दूसरा फॉर्मेट होता है। पेज को स्टाइलिंग करने के हमारे पास 3 फॉर्मेट होते हैं, इनलाइन स्टाइल, एक्सटर्नल स्टाइल, और होता है एक आ गया आपका एम्बेडेड स्टाइल। एम्बेडेड के अंदर HTML के अंदर ही आप इसकी स्टाइल टैग के अंदर सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं
उनका अगर आप कलर चेंज मतलब जो भी आप उसके अंदर डिजाइन चेंज करना चाहते हैं वो आप स्टाइल टैग के अंदर लिखिए। ठीक है, तो इससे क्या होगा। There are three types of page styling: inline styling, external styling, and ambient styling. Right? यस, अब ये सब डेवलपर की उसकी आपके काम की प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है कि आपको जो कौन सी स्टाइलिंग चूज करनी है, जो आपको इजी हो, अगर आपको उसमें लेटर ऑन कोई भी चेंजेस करने हो। तो मोस्टली इनलाइन स्टाइलिंग को कभी भी प्रेफर नहीं किया जाता है, क्योंकि वो टाइम टेकिंग है अगर आपको उसमें दोबारा कभी भी कोई चेंजेस करने हुए तो। Okay. ठीक Okay. है, वो इनलाइन स्टाइलिंग हम जब यूज करते हैं जब हम कहीं पे बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज भूल गए हो, या फिर जो हमें पता है कि वो बार बार चेंज नहीं होने वाली। Okay. ठीक है, Okay. अब यही सेम मैंने देखो, अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर मैं यहाँ पे स्टाइल टैग के अंदर H2 पे मैंने एक प्रॉपर्टी ऐड की, कलर रेड। ठीक है, तो ये क्या करेगा, अब इस पेज के अंदर मेरे जितने भी H2 के एलिमेंट्स होंगे ना, वो सारे रेड कलर के होंगे ऑटोमेटिक। ठीक है, ठीक है। वो जितने जितने भी यहाँ पे H2 टैग्स होंगे वो सारे रेड कलर होंगे। आपको देने के उनको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिवाय इस वाले H2 एलिमेंट के, जिसको मैंने पहले ही ब्लू किया। बता रखा है कि बता ब्लू। हाँ, जिसको मैंने ब्लू किया है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये दोनों का डिफरेंस है कि एम्बेडेड में कि अगर आपने उसके अंदर कोई प्रॉपर्टी डिफाइन कर दी है तो वो क्या है, सेम कलर लेगा। और इनलाइन के अंदर आप उसको डिफरेंशिएट कर सकते हो, हर एक का अलग अलग। ठीक है, ठीक है। अब ये इन H2 टैग्स के अंदर है कुछ नहीं। लेकिन अगर हाँ, अब इसको भी हम चेंज कर सकते हैं कि अगर आप चाहते हो किसी स्पेसिफिक सेक्शन का ही जो कलर है वो चेंज हो, पूरे एलिमेंट का कलर चेंज ना हो। ओके। उसके लिए देखो हम क्या यूज करेंगे। अब हम इनको डिवाइड करते हैं। अब देखो ये जो आर्टिकल है, जो नॉर्मल जो टैग्स थे उनमें लिख रहे थे, अब हम क्या है इन्हें सेक्शन वाइज हम डिवाइड करना चाहते हैं। क्योंकि जो हमारा जो पेज होता है वो भी देखा होगा आपने कि एक बेसिक लेआउट आपको कोई दिखता होगा, ऊपर एक सर्च बार, साइड में कुछ कॉलम्स होंगे। जो पेज होते हैं मोस्टली ये लेआउट कंटेन करते हैं। अब हम बनाते हैं एक सेक्शन। ठीक है, इस सेक्शन के अंदर मैंने ये जो H2 का कंटेंट है ये डाल और इस सेक्शन को मैं दूंगी क्लास। ठीक है, इस सेक्शन को मैंने एक एट्रीब्यूट प्रॉपर्टी दी क्लास। अब इस क्लास का आपको एक नेम डिफाइन करना है, यूनिक। कुछ भी नेम डाल सकते हो, ये जरूरी नहीं है कि जो नेम मैं डाल रही हूँ वही डालो। ये नेम आप कुछ भी डिफरेंट डाला है जो आपको याद रहे कि ये बेसिकली इस वाले सेक्शन के लिए हमने रखा है। ठीक है, ये वेब हेडिंग। अब इस क्लास को यूज करूंगी मैं इस H2 डॉट क्लास। अब क्लास के अंदर हमें जिस भी प्रॉपर्टी को स्टाइल करना हो वो हमेशा डॉट के साथ यूज होती है। ओके। अब जब मैंने वेब हेडिंग H2 लिखा तो अब क्या है, सिर्फ सेक्शन के अंदर जितने भी H2 हेडिंग्स है उनका कलर चेंज होगा रेड, इस वाले H2 का कलर होगा ब्लू आपका, और ये जो दो बाकी के जो H2 कलर है बाय डिफॉल्ट जो ब्लैक कलर होता है इनका, वही कलर आपको प्रेजेंट मिलेगा। ओके। मैम ये आज खत्म ये करें। देखोगे क्या क्या ये हाँ ये ठीक है। समझने की। हाँ राजीव, अब बस इसको हम एंड कर रहे हैं। अब आपको मैं एक छोटा सा टास्क देके जा रही हूँ, ठीक है, बाकी मैं इसको नेक्स्ट सेशन में कवर करूंगी जो प्रॉपर होगी। आपको क्या करना है, एक पेज बनाना है इन टैग्स को यूज करके, अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन। कर दीजिए। ठीक है, ओके। नॉर्मल एक HTML पेज बनाना है ओके, जिसमें आपको अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन लिखना है। ठीक है, मैं कर दूंगा। ठीक है, ठीक है, बेसिक ठीक है, पेज। ओके, ठीक और है। अगर ये विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड करने में कोई दिक्कत आए तो उसके लिए भी आप बता सकते हैं। ओके ओके, सो चलो आज के लिए मैम, और कोई डाउट। अभी तो नहीं, पहले मुझे रिवाइज करने देंगे।
यस ठीक है आशीष ओके सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में आज के लिए इतना ही ओके ओके बाय मैम बाय।